हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲॉसेस ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਉਹ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲॉसेस ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਜੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਫਰਮ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਹੈ, ਦੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਊਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। बट अगर पार्टनर्स अपने अकाउंट्स जो अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और लॉसेस के अकाउंट्स हैगे आ, ठीक है, उसनों क्लोज नहीं करना चाहते, उसनों अगे लैके जाना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने अकाउंट्स में उस टाइम आपां सैकेंड केस करांगे, ठीक है। एक केड़ा केस 1, ये है केस 2। देखो स्टूडेंट्स, अपने को केस 1 सीगा जो आप अपने अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स के अकाउंट क्लोज करने हैं। क्लोज किस तरह करांगे, आप उसनों आप सारे जो अनडिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स पे है उसनों आप कैपिटल पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के विच ट्रांसफर कर देंगे। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्सड अकाउंट लिखा हुआ है दैन आप करते होंगे करंट अकाउंट के विच, पार्टनर्स करंट अकाउंट के ट्रांसफर करते हैं। देखो पहला आप करते हैं ट्रांसफर ऑफ एकमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। हुण अपने को जो भी प्रॉफिट्स पे है, रिजर्व्स पे है, उसनों आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अकाउंट, इसका केड़ा क्रेडिट बैलेंस है अपने को, ठीक है, इट मीनस प्रॉफिट से अपने को जर्नल रिजर्व और रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। इसनों आप किस ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आप जिन्ने भी पार्टनर्स होंगे, ठीक है, उन्होंने कैपिटल और करंट अकाउंट के ट्रांसफर कर देंगे। इन्ना सारे किस रेशो के करांगे, ओल्ड रेशो। स्टूडेंट्स, इत्थे आपां सिर्फ
ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਟਾਈਮ ਲੋਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਲੋਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ख़त्म ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲੋਸਿਸ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੈਫਰਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਜੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਰੈਵਨਿਊ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਆ। ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਡੈਬਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਸਿਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਲੋਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕੂਮੂਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਲੋਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਪਏ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ। ਉਹ ਸੇਮ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਔਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਔਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮੂਲੇਟਡ ਲੋਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਜੋ ਵੀ ਲੋਸਿਸ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਐਂਟਰੀ ਪੈਣੀ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਗੇਨਿੰਗ ਔਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਗੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਮੂਲੇਟਡ ਲੋਸਿਸ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਮ ਦੇਖੋ, P and Q are the partners in 2:1 ratio. They have decided to share profit in 3:2 ratio in future. ਉਹਨਾਂ PQ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2:1। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ।
they have 60,000 in profit and loss account and 18,000 in journal reserve. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਰਨਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,000। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਿਫੋਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦੇਅਰ ਰੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਪਏ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਪਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਫਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੀ ਫਸਟ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किन्ने नाल 60,000 और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट with 80,000 to P's capital account to Q's capital account। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ टोटल कितना है, आप रफ वर्क लिए इधर लाइन मार ली। देखो टोटल कितना अपने को 78,000। इसनू ਆਪਾਂ ਨੇ P ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ। ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2:1, 2:1। ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ P ਐਂਡ Q ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 78,000 ਇੰਟੂ 2/3, 78,000 इंटू 1/3। P की कैपिटल आ गई बच्चे 52,000 और Q की आ गई 26,000। एक बच्चे आप इतने नरेशन जरूर पानी है। बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जर्नल रिजर्व distributed in old ratio, that is 2:1। स्टूडेंट्स हम 10th सम देखो। सीता एंड गीता शेयर प्रॉफिट्स in 3:2 ratio। On 1st April 2016, the profit and losses account debit showed 50,000. They changed their profit ratio to 2:1, but before this change, they distribute the balance in profit and loss account। कहते सीता और गीता पार्टनर्स है जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ। पर 1 अप्रैल 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? 50,000। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2:1 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कि इस अकाउंट को खत्म करना चाहते हैं। जो भी इन्हों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है अपनी नवी रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ अपने प्रॉफिट एंड शेयर ਨੂੰ शेयर ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ਨੂੰ ਉਹ क्लोज करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। स्टूडेंट्स ਇੱਥੇ डेबिट बैलेंस है अपने ਕੋਲ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। इट मीनस ये अपना लॉस है। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ केस फस्ट की सैकेंड एंट्री लॉस वाली करवाई सी। उस दे विच आपां की करदे हुंदे आ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
मतलब जो भी लॉसिस है उसनों आपां क्रैडिट कर देंगे। ठीक है, इत्थे आपां सेम एंट्री पानी है वही। देखो आपने की कीता सी फस्ट केस दे विच जदों आपां ट्रांसफर करते हैं अकोमूलेटेड लॉसिस नूं, ठीक है, मतलब जो भी अपने लॉसिस है उसनों आपां खत्म करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डेफर्ड रेवन्यू एक्सपेंसिस है उसनों भी आपां क्रैडिट करता सी। आपां यही एंट्री पा रहे हैं। पार्टनर्स देखो किहड़े किहड़े है, सीता है और गीता। टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अपने को कितना है 50,000। आप केड़ी रेशो दे विच डिवाइड करना है 3:2। कितना कितना आ जाऊगा 30,000 और 20,000। इत्थे अपन नरेशन लिख देंगे being profit and loss account is distributed in 3:2 रेशो। बस इत्थे अपना डेबिट बैलेंस दिता है इसलिए इसनों आप क्रैडिट करता है। ये अपना लॉस सीगा, ठीक है, इसनों थोड़ा ध्यान दे विच रखियो अगर डेबिट बैलेंस दिता हुंदा है। स्टूडेंट्स हुण देखो जो 11 सम है, 11 सम दे विच की है ABC 3 पार्टनर्स ने, उन्होंने ओल्ड रेशो 2:3:3 रेशो है। उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच 80,000 है और 24,000 जर्नल रिजर्व दे विच है, ठीक है। हुण इन्हां नूं आपां इस अकाउंट्स नूं भी आपां क्लोज करना है। अगर आपां नूं क्या हुंदा कि क्लोज करना है तो आपां की करदे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जर्नल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC किहड़ी रेशो दे विच 2:3:3 रेशो दे विच। बट इत्थे की लिखिया इन्हां ने यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री इन दी बुक्स विदाउट क्लोजिंग दी एग्जिस्टिंग अकाउंट्स। आपां हुण जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज नहीं करना, विदाउट क्लोजिंग लिखिया ना, इत्थे आपां क्लोज नहीं करना। इत्थे आपां की है एडजस्टमेंट एंट्री पानी है, जो आपां सैकेंड केस कीता सी उस दे अकॉर्डिंग आपां पावांगे इत्थे। देखो स्टूडेंट्स अपने को 11 सम है A, B and C are the partners in 2:3:3 ratio. On 31st December they have 80,000 in P&L account and 24,000 in journal reserve. They decided to share in 2:2:1 ratio. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਰਨਲ एंट्री ਜਦੋਂ अकाउंट्स विदाउट क्लोजिंग, ठीक है। आप अकाउंट्स क्लोज नहीं करने, इट मीनस अपना केड़ा केस लगूगा केस सैकेंड, ठीक है। और अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जर्नल रिजर्व दिता हुआ है, इट मीनस आप केड़ी एंट्री लानी है फर्स्ट वाली केस सैकेंड की फर्स्ट एंट्री, ठीक है, जो किसी प्रॉफिट्स और जर्नल रिजर्व नूं एडजस्ट करन दी एंट्री सीगी। केस सैकेंड की फर्स्ट एंट्री आप लगावांगे, ठीक है। वो केड़ी सीगी गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रीफाइजिंग पार्टनर। यही एंट्री सी ना। हुण आपां नूं पता करना है अपने ABC दे विचों गेनिंग पार्टनर्स किहड़े है और सैक्रीफाइजिंग पार्टनर्स किहड़े है, इसलिए आपां की निकालांगे गेनिंग और सैक्रीफाइजिंग रेशो। चाहे आपां सैक्रीफाइस रेशो निकाल लो, चाहे आपां गेनिंग रेशो निकाल लो, आपां नूं पता चल जू किहड़ा पार्टनर गेन कर रहा है और किहड़ा सैक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। एज यूजल मैं सैक्रीफाइजिंग रेशो के नाल निकाल दी हाँ। स्टूडेंट्स देखो सैक्रीफाइजिंग रेशो मैं निकाल चुकी हाँ, क्योंकि मैं तुहानूं ऑलरेडी सिखा चुकी हाँ, इसलिए मैंने यह निकालती। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो अपने को 2:3:3 रेशो और न्यू रेशो अपने को 2:2:1 रेशो, ठीक है।
आप ए बी और सी पार्टनर की निकाल ली ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तिना पार्टनर से निकाल के आ गई अपने को ए और बी है, ये अपने गेनिंग पार्टनर्स आ गए। देखो सैक्रीफाइजिंग दे विच अगर जिहदे अगे माइनस आ जाए वो अपने गेनिंग पार्टनर्स होंगे हैं, और सी अपना सैक्रीफाइजिंग पार्टनर आ गया, ठीक है। एंट्री की बनती है अपनी एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर्स है दोनों डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किहड़ा पार्टनर करना है सैक्रीफाइजिंग पार्टनर, दैट इज सीज कैपिटल अकाउंट। हुण आपां देखने अमाउंट किन्नी किन्नी आऊगी। देखो स्टूडेंट्स अपने को टोटल कितना 18,000 P&L अकाउंट का, P&L अकाउंट का कितना अपने को 80,000, और जनरल रिजर्व कितना अपने को 24,000। ये अपना आ गया 1,04,000। इस दे विचों सी का शेयर कितना है 7/40, और ए और बी का कितना देखो ए का 6/40 और बी का 1/40। देखो स्टूडेंट्स सी का अपने को आ गया 18,200, और ए का अपने को आ गया 15,600, बी का आ गया 2,600। इतने पुट कर देंगे आप। सी की कितनी आई अपने को 18,200, और ए का अपने को 15,600, बी का आ गया अपने को 2,600। नरेशन भी लिख दी आप बीइंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स और प्रॉफिट्स। ये सी अपना 11th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स फिलहाल तुसी 12th क्वेश्चन हजे रहन दो, 13th और 14th तुसी निकाल के देखना है, ठीक है। देखो इस दे विच अपने को दोनों केसिस नाल निकालना है, जो अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं उस टाइम भी निकालना है, ठीक है। केस फर्स्ट और वैन रेलिवेंट अकाउंट्स आर नॉट क्लोज, जो आप एडजस्टमेंट एंट्री पाने होने, ठीक है। केस सैकेंड एक आप ध्यान रखना इतने की गिवन है अपने को, यही अपने को देखो डेफर्ड एडवरटाइजमेंट अकाउंट है, ये की होंगे अपने लॉसिस, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी अपना डेबिट बैलेंस है, इसलिए भी अपने लॉसिस हो गए, इसलिए इसनों आप की करते होंगे क्रैडिट, ठीक है। जो आप अकाउंट नू क्लोज करना उस टाइम आप इसनों क्रैडिट कर दें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड एडवरटाइजमेंट अकाउंट। ये हो जो अपना केस ए, मतलब फर्स्ट एंट्री अपनी ए पऊगी। जो अपने को लॉसिस होंगे उस टाइम आप एडजस्टमेंट एंट्री किमें पाने होंगे, देखो सैकेंड अपन की है जो आप अकाउंट्स क्लोज नहीं करने, मतलब एडजस्टमेंट एंट्री पानी है, ठीक है। आप किता सी ना केस सैकेंड, उस दे विच आपां केस सैकेंड की सैकेंड एंट्री सी लॉसिस वाली, उस टाइम आप की करते हैं सैक्रीफाइजिंग पार्टनर नू डेबिट करते हैं और गेनिंग पार्टनर नू क्रैडिट करते हैं। ये आपको निकालना पऊगा गेनिंग रेशो और सैक्रीफाइजिंग रेशो के थ्रू कि गेनिंग पार्टनर केड़ा है और सैक्रीफाइजिंग पार्टनर केड़ा है। अपने को ओल्ड रेशो 2:1 है, न्यू रेशो 3:1 है, ठीक है। आप चाहे गेनिंग रेशो वाला मैथड ला दिए चाहे सैक्रीफाइजिंग वाला मैथड ला दिए, उस तो अपन पता चल जो सैक्रीफाइजिंग पार्टनर केड़ा है और गेनिंग पार्टनर केड़ा है, ठीक है। ये तुसी खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक है ना। स्टूडेंट्स देखो 15 सम अपना केड़ा है, इस दे विच भी आप अकाउंट्स नू क्लोज करना है, ठीक है। अपने को ए बी और सी पार्टनर्स ने उन्होंने रेशो दे रखी अपने को 4:3:2 रेशो, और दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन
इन दी रेशो 3:2:1, ठीक है। उस टाइम इन्होंने बैलेंसिस दे रखे अपने को प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, इट मीनस ये प्रॉफिट अपने को 25,000 का, जनरल रिजर्व है 60,000 दे, डेफर्ड रेवन्यू एक्सपेंडिचर ये अपने एक्सपेंसिस है, इट मीनस लॉसिस अपने को 20,000 दे, ठीक है। पास दी जनरल एंट्री सैपरेटली। आप पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट नू क्लोज करना है, ठीक है। फिर आप लॉसिस वाले अकाउंट नू क्लोज करांगे। ये अपना केस फर्स्ट है, इस दे विच आपां जो भी अपने को प्रॉफिट्स है और लॉसिस है उसनू क्लोज करना है। देखो फर्स्ट एंट्री अपनी पऊगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 25,000 दे नाल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 16,000 टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट, तिन्ने पार्टनर्स नू ए ओ बी और सी नू आपां क्रेडिट कर दांगे, ठीक है। ओ किहड़ी रेशो दे विच करांगे 4:3:2 रेशो दे विच, ठीक है। अपनी कोल फर्स्ट एंट्री पै गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, तिन्ने पार्टनर्स नू क्रेडिट करना। ये तो अपनी फर्स्ट एंट्री पै जू। हुण अपनी जिहड़ी लॉसिस है उसनू भी आपां खत्म करना है, ठीक है ना। वो कि अपने को डेफर्ड रेवन्यू एक्सपेंडिचर किन्ने अपने को 20,000 दे। हुण इस टाइम आपां इसनू की करांगे क्रेडिट कर दांगे। अपनी सैकेंड एंट्री दे विच की होगा एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट नू आपां डेबिट कर दांगे, तिन्ने पार्टनर्स नू आपां डेबिट करना है और जो अपने लॉसिस है उसनू क्रेडिट कर दांगे, ठीक है। इस नाल अपने ये तीनों अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। सो उन्होंने पता ही है पार्टनर्स दे विच जो प्रॉफिट्स है उसनू केड़ी रेशो दे विच डिवाइड करना है 4:3:2 मीनस टू से ओल्ड रेशो दे विच, और लॉसिस है वो भी 20,000 नू भी आपां 4:3:2 रेशो दे विच डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये तुसी खुद ट्राई करियो। 16 सम भी मैं करा रही हाँ, ठीक है। 16 सम तो पहला आपां 8 सम कर लिए, 16 सम तो पहला आपां 17 सम करते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट्स देखो 17 सम अपने को XYZ आर दी पार्टनर्स जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 5:3:2 रेशो दे विच। हुण उन्होंने डिसाइड किया कि असीं प्रॉफिट एंड लॉस ही शेयर करांगे 2:3:5 रेशो दे विच। दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एकमुलेटेड प्रॉफिट लॉसिस एंड रिजर्व्स विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक फिगर्स बाय पासिंग अ सिंगल जनरल एंट्री। एक सिंगल एंट्री पानी है, ठीक है ना, जस्ट अपने इफेक्ट शो करने, ठीक है। अपने को रिजर्व दिते है 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिता अपने को 24,000 एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिता अपने को 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच नाल कुछ नहीं गिवन, इसलिए इसनू आपां प्रॉफिट ही मान के चलांगे, ठीक है। अगर इत्थे डेबिट बैलेंस दिता हुंदा तो आपां इसनू लॉस मानते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी अपना लॉस हुंदा है। स्टूडेंट्स इत्थे आपां जस्ट इफेक्ट देखना है, इसलिए आपां इस अकाउंट्स नू क्लोज नहीं करना, ठीक है ना। इट मीनस अपनी एडजस्टमेंट एंट्री पऊगी। एडजस्टमेंट एंट्री लिए आपां नू की करना हुंदा, आपां ने गेनिंग पार्टनर्स और सैक्रीफाइजिंग पार्टनर्स बारे पता करना हुंदा, ठीक है। इसलिए आपां सब तो पहला आपां सैक्रीफाइजिंग रेशो के थ्रू आपां नू पता करते हैं अपना गेनिंग पार्टनर किहड़ा और सैक्रीफाइजिंग पार्टनर किहड़ा। स्टूडेंट्स देखो ओल्ड रेशो अपनी कितनी सी 5:3:2 रेशो, न्यू रेशो अपने को 2:3:5 रेशो। मैंने XYZ दी निकाल लिया, अपने को आ गया Z है जोड़ा वो गेनिंग पार्टनर आ गया और X है वो सैक्रीफाइजिंग पार्टनर आ गया। बाई द शेयर नील है, इसलिए यह ना तो सैक्रीफाइजिंग पार्टनर है और ना ही गेनिंग पार्टनर। स्टूडेंट्स अपने को क्वेश्चन दे विच प्रॉफिट भी है और लॉसिस भी है, ठीक है। प्रॉफिट्स जनरल रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच अपना प्रॉफिट पे है और लॉसिस किहड़े अपने को एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे विच लॉस है, ठीक है ना। इसलिए आपां नू इत्थे आपां एक सिंगल एंट्री नहीं पा सकते क्योंकि इत्थे तो दो एंट्रियां बनदियां, ठीक है। आपां नू प्रॉफिट दी आपां अलग पाने हुंदे, लॉसिस दी अलग, लेकिन इन्हां ने की एक सिंगल एंट्री पानी है, एक जस्ट एक सिंगल एंट्री पानी है। इसलिए आपां की करांगे प्रॉफिट्स और लॉसिस नू एडजस्ट कर देंगे। देखो अपने को प्रॉफिट्स किहड़े-किहड़े हैं
जनरल रिजर्व 6000, प्रॉफिट एंड लॉस दे विच कितना पे अपने को 24000। जो अपना एडवरटाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का लॉस है 12000, इसनों आप लैस कर देंगे। ठीक है, अपने को देखो टोटल कितना प्रॉफिट आ गया 18000, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया 18000। ठीक है, हुण तो आप सिंगल एंट्री पा सकते हैं क्योंकि अपने को जस्ट हुण प्रॉफिट कितना 18000। आप प्रॉफिट नूं एडजस्टमेंट करन दी एंट्री किहड़ी पांदे हुंदे सी, गेनिंग पार्टनर, अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर किहड़ा अपने को जेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। शेयर देखो कितना है, जेड का 3/10, एक्स का भी 3/10। 18000 का 3/10 करो, $5400। ठीक है, 5400 नाल आप जेड दे अकाउंट डेबिट कर देंगे और एक्स अकाउंट 54 नाल क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिख दियो बीइंग प्रॉफिट इज एडजस्टेड। ए सी स्टूडेंट्स अपना 17 सम। स्टूडेंट्स देखो 16 सम, X and Y are the partners sharing profit in 2:3 ratio with effect from 1st April 2019. They agreed to share profit in the ratio 1:2 ratio. For this purpose, goodwill of the firm valued at 2-year purchases of average profit of last 3-year purchases, which were 75,000, 18,000, 1 lakh. Reserves appear in the books 55,000. Partners neither want to show the goodwill in the books or nor want to distribute the reserves. You are required to give effect to the change by passing a single journal. स्टूडेंट देखो इत्थे आपां नूं ओल्ड रेशो दे रखी है 2:3 और नवी रेशो दे रखी है 1:1। इस सम दे विच अपने कोल गुडविल है, पर गुडविल की वैल्यू इन्होंने सीधा नहीं दिती भी। ये आप जिवें गुडविल चैप्टर दे विच आपां पढ़िया सी कि किवें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इत्थे आपां गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। आपां नूं लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट्स दे रखे हैं 75,000, 80,000 और 1 लाख। और अपने को रिजर्व्स भी दिते हुए हैं। ठीक है, आप एक सिंगल जर्नल एंट्री पावांगे। पहला आप गुडविल निकाल लें सोल्यूशन। देखो स्टूडेंट्स गुडविल किवें निकाली है, अपने 3 सालों के प्रॉफिट लेते हैं, उन्होंने पहले एवरेज कर ली। ठीक है, उसनों नंबर ऑफ ईयर परचेजिज नाल मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ ईयर परचेजिज किन्ने अपने को 2 ईयर परचेजिज है, इसलिए आप 2 नाल मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आप सब कुछ गुडविल चैप्टर दे विच आपां निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसनों फटाफट निकालता। अपनी गुडविल आ गई 1,70,000। हुण आपां सैक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लांगे। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। स्टूडेंट्स देखो मैं सैक्रीफाइसिंग रेशो निकाल ली। अपने को ओल्ड रेशो से 2:3, न्यू रेशो अपने को 1:2। ओल्ड माइनस न्यू करती, एक्स की करती, फिर बाई की रेशो कर दी। ठीक है, अपने को आ गया गेनिंग पार्टनर बाई है और सैक्रीफाइसिंग पार्टनर एक्स। हुण स्टूडेंट्स आप एक एंट्री पानी है। देखो इन्होंने की लिखा है, पार्टनर्स नाइदर वांट टू शो द गुडविल इन दी बुक्स और नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। ना तो वो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं पार्टनर्स, इट मीन एडजस्टमेंट एंट्री पोगी, और ना ही गुडविल है जी वो बुक्स के विच शो करना चाहते। इसकी आप हूँ कंबाइंड एंट्री पा देंगे। देखो अपन पता चल गया अपना गेनिंग पार्टनर किहड़ा बाई और एक्स किहड़ा सैक्रीफाइसिंग पार्टनर।
अपनी एंट्री पै जू 22 कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। हूँ स्टूडेंट्स आप देखने किन्ने नाल पऊगी, ठीक है। अपने कोल गुडविल कितनी है 1,70,000 की, और रिजर्व्स कितने अपने कोल 55,000 की। टोटल अपना आ गया 2,25,000, ठीक है। ये सी अपनी गुडविल, ये अपने रिजर्व्स, कंबाइंड कितनी आ गई 2,25,000, ठीक है। 2,25,000 दे विच 22 का शेयर कितना है 1/15 और एक्स का भी 1/15। इसनों आपां 1/15 ना मल्टीप्लाई करती कितना आ जाऊ 15,000, ठीक है। ये सी अपनी एडजस्टमेंट एंट्री। ये सम दे विच डिफरेंट बस यही सीगा कि आपां नूं गुडविल निकालनी पऊगी, ठीक है। गुडविल भी आपां ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं जो आप गुडविल चैप्टर किया सी। आप पहले एवरेज लैती सारिਆਂ ਦੀ, ठीक है। फिर आप नंबर ऑफ ईयर परचेजिज नाल मल्टीप्लाई करते हैं, जो अपना एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है उसनों नंबर ऑफ ईयर परचेजिज नाल मल्टीप्लाई करके अपनी की है गुडविल निकल जाती है, ठीक है। फिर आप सैक्रीफाइजिंग रेशो निकाल ली, उस तो अपन पता चल गया गेनिंग पार्टनर केड़ा और सैक्रीफाइजिंग पार्टनर केड़ा है। अपने कोल टोटल आप देख लिया, अपने कोल गुडविल और रिजर्व्स कितनी है 2,25,000, उसनों आप एडजस्ट करता एक्स और वाई दे विच। इहदी भी नरेशन तुसी लिख दियो, ठीक है ना। स्टूडेंट्स जो 12th सम रह गया, जो अपना एडमिशन चैप्टर होगा ना उस टाइम तुहानूं वो ज़्यादा क्लीयर होगा, इसलिए मैं फिलहाल छड्ड रही हाँ 12th सम, ठीक है। उसनूं अगर तुहाडा निकल जाए तो गुड है, अदरवाइज आप जो एडमिशन चैप्टर करांगे उस टाइम आप उसनूं सम नूं निकालांगे। स्टूडेंट्स अपना नैक्सट टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा जिहा डिफरेंट है जो आप बाकी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स का किया सीगा, ठीक है। इस दे विच थोड़ी जी एंट्री एक्सट्रा पैनी है, वो आप करांगे। पहले देख लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की हुंदा है। इट इज़ अ रिजर्व टू कंपनसेट द वर्कर्स अगेंस्ट द इंजरीज दे मे सफर वाइल वर्किंग। जो भी वर्कर्स नूं कई बार काम करते हुए चोट वगैरह लग जाती है, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं उस तो उन्होंने कंपनसेट करने लई, ठीक है ना, ये रिजर्व क्रिएट किया जाता है। यही हमेशा प्रॉफिट्स के विचों क्रिएट किया जाऊगा, ठीक है। ये दो गल्लां आपां ध्यान दे विच रखनी। हुण आपां इसदा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ये भी अपने 2 वेज ने, इसके भी फर्स्ट अपना जो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नूं क्लोज करना है, ठीक है। ये अपना हो गया केस 1। सैकेंड है वैन पार्टनर डिसाइड नॉट टू क्लोज दी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये मैं शॉर्ट फॉर्म दे विच रखता WCR। जो पार्टनर्स डिसाइड करते कि उन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नूं क्लोज नहीं करना, इत्थे आपां की पावांगे एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री तो अपन पता ही है कि पैंदी हुंदी है गेनिंग पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट टू सैक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो आप हुण बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, ठीक है। ये तो तुहानूं एंट्री क्लीयर हो जानी चाहिए है। वर्कमैन कंपनसेशन दे रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे विच भी आपां सेम एंट्री रखांगे, ठीक है। इस केस दे विच थोड़ी जी चेंजिज है, वो आपां 1 बाय 1 हरेक एंट्री करते हैं। स्टूडेंट्स देखो केस 1 सी अपने कोल वैन पार्टनर डिसाइड टू क्लोज दी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो पार्टनर डिसाइड कर दे कि अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो उन्होंने को रिजर्व अकाउंट शो हो रहा, ठीक है, उसनों क्लोज करना है, ठीक है। उसनों क्लोज जो आप पहला अपने रिजर्व या प्रॉफिट्स पे होंगे उसनों क्लोज करते होंगे सी, तो आप की करते होंगे सी प्रॉफिट्स जनरल रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
ਉਹੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਵੈਨ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਅਗਰ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਮੈਨ compensation reserve account to partners capital account ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਸੇਮ ਐਂਟਰੀ ਹੋਗੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, when there is no liability। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੂ ਵਰਕਮੈਨ कंपनसेशन पेबल्स। ठीक है, जो अपनी लायबिलिटी है टू, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰਸ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स ये सी अपने दोनों केस, फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड केस वही है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर डिसाइड करते कि अकाउंट उन्होंने क्लोज करना। ठीक है, उस टाइम आप यही एंट्री पावांगे। हुण आप इसनूं एक सम दे नाल समझते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ 18th ਸਮ ਦੇਖੋ। 18th ਸਮ ਦੇਖੋ, XYZ are the partners in 2:3:1 ratio. The new ratio will be 1:2:3। बैलेंस शीट अपने को दी है लाइबिलिटीज साइड ते वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का गिवन है। आपने निकालना की है, शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। अगर कोई होर इंफॉर्मेशन अपने को गिवन नहीं, दैन आप की करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सारा का सारा पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ड्यू 6,000, अगर अपनी लायबिलिटी 6,000 है। ठीक है, आप ये अपने पेबल्स बन जाएंगे, बाकी आप पार्टनर्स के डिवाइड कर देंगे, मतलब कि 24,000 आप पार्टनर्स के डिवाइड कर देंगे, 6,000 अपने वर्कमैन कंपनसेशन पेबल्स हो जाएंगे।
इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट्स फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज ड्यू ₹33,000। ਹੁਣ ਆਪਣੇ अगर पेबल्स ड्यू है, ठीक है ना, अपनी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है 33,000 की, पर अपने को रिजर्व तो 30,000 दे है। हूँ अपने इत्थे जो लाइबिलिटी है वो 3,000 ज़्यादा है, ठीक है, इत्थे 3,000 ज़्यादा है तो आप की एक अकाउंट खोल लें, वो है रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये आप एंट्रियां के थ्रू करते हैं। पहले देखो स्टूडेंट्स, अपने को फर्स्ट केस है व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। इस टाइम की करांगे आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सारा ਦਾ सारा पार्टनर्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू जिन्ने भी पार्टनर है XYZ, X कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट टू Z's कैपिटल अकाउंट, तिना पार्टनर्स के विच डिवाइड कर देंगे। अपने को किन्ना है 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन किन्ना अपने को 30,000। इसनू आपां ओल्ड रेशो किन्नी अपने को 2:3:1, इस रेशो दे विच आपां तिना पार्टनर्स के विच डिवाइड कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स, अपने को 30,000 है, 30,000 नू आपां 2:3:1 रेशो के डिवाइड करना है। पहला देखो एक्स का कितना होगा 30,000 इंटू 2/6, अब टोटल अपना 6 है ना। एक्स की कैपिटल आ गई अपनी 10,000, बाई दी देखने अपन 30,000 इंटू 3/6 15,000। उसी तरह जेड दी देख लिए 30,000 1/6 5,000, ठीक है। विंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व is distributed among partners in old ratio। स्टूडेंट्स हूँ अपना सैकेंड केस है जो वर्कमैन कंपनसेशन ड्यू है 6,000 अपना लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। अपने रिजर्व के विचों आप 6,000 की अपनी लाइबिलिटी बन रही है। देखो इसकी एंट्री की बनूगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर देंगे किन्ने नाल 30,000 के नाल, ठीक है। और अपने पेबल्स किन्ने है 6,000, ठीक है। हुण जिन्ना भी अपने को लैफ्ट रह गया 30,000 के विचों 6,000 माइनस करके 24,000 आप XYZ दे विच केड़ी रेशो दे विच डिवाइड करना है, ओल्ड रेशो दे विच, ठीक है। अपनी ओल्ड रेशो है 2:3:1 रेशो, उस दे विच डिवाइड करते हैं आपां। देखो अपना कितना आऊगा, इस एक्स की कैपिटल 8,000 आ गई, बाई की कैपिटल 12,000 और जेड की कैपिटल 4,000। इस दिन नरेशन देखो की लिखनी है, विंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹24,000 is credited in 2:3:1। ये अपने स्टूडेंट्स दोनों केस हो चुके हैं। हुण अपना थर्ड केस देखो की सीगा। थर्ड केस की है जो वर्कमैन कंपनसेशन ड्यू होंगे 30,000, मतलब रिजर्व अपने को घट है, अपनी लाइबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो रही है, ठीक है। उस टाइम आप एक अकाउंट होर खोलते हैं, दैट इज़ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन डिटेल दे विच आपां नैक्सट टॉपिक पढ़ांगे, उहदे दसूँगी मैं। अपना नैक्सट टॉपिक ही रिवैल्यूएशन दे उत्ते है।
देखो अपनी थर्ड एंट्री की बनती है, टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल्स। वर्कमैन कंपनसेशन पेबल्स किन्ने अपने को 33,000 राइट। और रिजर्व किन्ने अपने को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का। ठीक है, देखो ये अपना मैच होया, डेबिट क्रेडिट नहीं होया क्योंकि अपने 3,000 के नाल लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए ਆਪਾਂ जो भी नुकसान ਹੁੰਦਾ ठीक है उसनों ਆਪਾਂ रीवैल्यूएशन अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफर कर देना। ਇੱਥੇ अपना एक रीवैल्यूएशन अकाउंट खुल जूगा, $3,000 ਆਪਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਰੀਵੈल्यूएशन एक बार तुसी जस्ट ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੀਵੈल्यूएशन। ठीक है, उस तो बाद आप एक होर एंट्री पावांगे जोड़ा अपना ये रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन दे विच लॉस है ठीक है ना, उसनों आपां पार्टनर्स दे विच ओल्ड रेशो दे विच डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रैडिट हो जाओ टू रिवैल्यूएशन किन्ने नाल 3,000 दे नाल। रिवैल्यूएशन लॉस है ये अपना, उसनों आपां एक्स वाई जैड दे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे विच ट्रांसफर कर देना है। केड़ी रेशो दे विच ओल्ड रेशो दे विच ठीक है। ओल्ड रेशो किन्ने अपने कोल 2:3:1। देखो करके किन्ना किन्ना आ गया, एक्स दी कैपिटल आ गई 1000, वाई दी 1500 और जैड दी 500। ये अपना एक सम सीगा इत्थे वर्कमैन कंपनसेशन का ठीक है। बाकी अपने को 2 एग्जाम्पल्स है, उसनों आप तुसी खुद सोल्व करके देख